गुड मॉर्निंग एवरीवन। योग वशिष्ठ के 12वें सत्र में, इस श्रृंखला के 12वें सत्र में आज मैं सोमेश्वर और यतीन, हम दोनों की तरफ से आप सभी का स्वागत है, अपने ऑडियंस को भी और अपने देखने वाले व्यूअर्स को भी। Good morning everyone. I welcome all of you to this 12th session of Yoga Vashishta along with Yatin. Our mentor Yatin is also there with us. Welcome Yatin. So let us begin. Our mind literally creates our body. So it all starts in the cell. The cell is a protein-producing machine, but it gets its signal from the brain. One of the things about receptors is they change in their sensitivity. If a given receptor for a given drug or internal juice is being bombarded for a long time at a high intensity, it will literally shrink up. There will be less of them, or it will be hooked up in such a way that it is desensitized or downregulated. So the same amount of drug or internal juice will elicit a much smaller response. If we're bombarding the cell with the same attitude and the same chemistry over and over again on a daily basis, when that cell finally decides to divide, when it produces a sister cell or a daughter cell, that next cell will have more receptor sites for those particular emotional neuropeptides and less receptor sites for vitamins, minerals, nutrients, fluid exchange, or even the release of waste products or toxins. Now, all aging is a result of improper protein production. What happens when we age? Our skin loses elasticity. Well, elastin is a protein. What happens to our enzymes? We don't digest as well. What happens to our synovial fluid? Those are proteins. They become brittle and stiff. What happens to our bones? They become thin.
So all aging is a result of improper protein production. So then the question arises, does it really matter what we eat? And does nutrition really have an effect if the cell doesn't even have the receptor sites after 20 years of emotional abuse to even receive or to let in the nutrients that are necessary for its health? Okay, guys, it's time for a course correction on our trajectory along the path of our adventure. And that course correction is the movement to a new paradigm, just an expansion of the old, just as the universe is larger than we thought it was in our modeling. And it's always larger than we think it is. I hate you. Hate you. You idiot! You're fat! Look at you! You're fat! You're ugly! You're worth nothing! You're getting old! I hate you! It makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. No one has ever came along and ever given you sufficient, intelligent knowledge about your beautiful self, how you work from the inside out. Why do you have addictions? Because you have nothing better. You have dreamt of nothing better because no one has ever taught you how to dream better. Do I think that you are bad? I don't think you're bad. Do I think you're good? I don't think you're good either. I think you're God. In general, the field of psychiatry really doesn't allow for enough freedom of action on people's part, meaning an awful lot of problems, not all of them to be sure, but an awful lot of problems that get labeled as psychological problems really amount to people making rotten choices. And they ought to be instructed to make different ones. Can I? Wow. Borrow some toothpaste? Thanks. When I talk about we disappearing, I don't mean that we physically disappear. What I mean is that we move out of the area of the brain that has to do with our personality, that has to do with our association to people, our association to places, our association to things and times and events. We don't exist in the associative centers in our brain that reaffirms our identity and reaffirms our personality. For the average person in the world who lives life and considers their life boring or uninspiring,
is because they've made no attempt to gain knowledge and information that will inspire them. They're so hypnotized by their environment through the media, through television, through people living and creating ideals that everybody struggles to become, that no one can actually become in terms of physical appearance and definitions of beauty and valor that are all illusions, that most people surrender and live their life in mediocrity. And they may live that life, and the soul may never really, their desire may never really rise to the surface, so they may want to be something else. But if it does rise to the surface, and they ask themselves if there is something more, or why am I here? What is the purpose of life? Where am I going? What happens when I die? They start to ask those questions. They start to flirt and interact with the perception that they may be having a nervous breakdown. And in reality, what they're doing is that their old concepts of how they viewed their life in the world start to fall apart. We're in completely new territory in our brain. And because we're in completely new territory, we're rewiring the brain, literally reconnecting to a new concept. Then ultimately, it changes us from the inside out. If I change my mind, will I change my choices? If I change my choices, will my life change? Why can't I change? What am I addicted to? What will I lose that I'm chemically attached to? And what person, place, thing, time, or event that I'm chemically attached to that I don't want to lose because I may have to experience the chemical withdrawal from that? Hence the human drama. Amanda, it's Bob, and I'm just calling to say I hope that you can come tonight. I really want to see you. I really want to talk to you. I know we can work things out. It's the only planet in the Milky Way that has habitation that is steeped in enormous subjugation of religion. You know why that is? Is because people have set up right and wrong. If I do this, I'm going to get punished by God. If I do the other thing, I'm going to get rewarded. This is a really poor description that tries to map out a path in life for us to follow, but with deplorable results, because there really is no such thing as good or bad. We're judging things far too superficially that way. Does that mean you're in favor of sin and licentiousness and depravity? No. It simply means that you need to improve your expression and understanding of what you're dealing with here. There are things that I do, and I know they'll evolve me. There are other things that will not evolve me. But it's not good or bad. And there's no God waiting to punish you because you did one or the other. There is no God condemning people. Everyone is God's. At the same time, God is the sort of placeholder name for those parts of our experience of the world which are somehow transcendent,
somehow sublime. I have no idea what God is. Yet I have an experience that God is. There is something very real about this presence called God. Although I have no idea how to define God, to see God as a person or a thing, I can't seem to do it. It's kind of like asking a human being to explain what God is similar to asking a fish to explain the water in which the fish swims. God is a superposition of all the spirit from all things. You are a God in the making, and you have to walk this path. But someday, you have to love the abstract as much as you love the condition of addiction. The only way that I will ever be great to myself is not what I do to my body, but what I do to my mind. So if we're consciously designing our destiny, and if we're consciously, from a spiritual standpoint, throwing in with the idea that our thoughts can affect our reality or affect our life, because reality equals life, then I have this little pact that I have when I create my day. I say I'm taking this time to create my day, and I'm infecting the quantum field. Now, if is in fact the observers watching me the whole time that I'm doing this, and there is a spiritual aspect to myself, then show me a sign today that you paid attention to any one of these things that I created, and bring them in a way that I won't expect. So I'm as surprised at my ability to be able to experience these things and make it so that I have no doubt that it's come from you. The brain is capable of millions of different things that people just really should learn, that how incredible they actually are and how incredible their minds actually are, and that not only do they have this unbelievable thing within their head that can do so many things for them and can help us learn and So that was the next 15 to 20 minutes of the documentary that we saw, and there's a lot that happened. बहुत कुछ हुआ है. देखते कि आज क्या keywords main theme जो हमने आज देखा. तो सबसे पहले जो कल का जो सिचुएशन था वहां पे, जहाँ पे अमेंडा एज अ फोटोग्राफर जाती है उस वेडिंग सेरेमनी में, वहां पे अलग अलग लोगों के अलग अलग बिहेवियर्स, इमोशंस, भावनाएं उनको देखती है, और उनके मन में एंड अमेंडा के मन में अलग अलग जो शरीर होता है अलग अलग तरीके से उसको सेल्स के लेवल पर अलग अलग रिस्पॉन्सेस देता है, रिएक्शंस देता है. देन उसके बाद में जब आज का जो जर्नी शुरू होता है तो द फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हमने सुना is that our mind actually creates our body. अपना जो मन है वो अपने शरीर को वैसा बनाने लगता है जैसे हम लोग अपने मन में सोचते हैं उसके बारे में. So this is another level of understanding कि जो अमेंडा होती है वो आईने के सामने जाती है और देखती है, and she starts imagining herself as a very fat lady. तो जैसे वो अपने आप को देखती है कि अरे मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, और वो उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाती. नो, तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, एंड सडनली उसका रिएक्शन देखते हैं तो वैसे वो बैन करती है, वो टूथपेस्ट निकल जाता है, एंड देन बोलती कि यू आर गेटिंग अगली, एंड देन अल्टीमेटली वो इस कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती है, बोलती है आई हेट यू, यू आर बिकमिंग सो अगली, तुम बूढ़ी हो रही हो, बिकमिंग ओल्ड, ऐसे कुछ अपने आप को बोलती है कि तुम बूढ़ी हो रही हो, तुम तो अगली हो, ऐसे
बोलते हैं एंड सडनली देन एक शिफ्ट दिखाई दिया है वहां पे कि वो पानी की बूंद टपकने लगती है अपने टैप से। और जैसे वो पानी की बूंद टपकती है उसको वो रिमेम्बरेंस होता है और रिकलेक्ट होता है ऑफ और रियलाइजेशन होता है जब वो उस स्टेशन पे जाती है रात में और वो बुद्धिस्ट मॉन्क को देखते हैं जिन्होंने वो ब्लेसिंग किया होता है, वो पिक्चर्स को देखते हैं क्रिस्टल ऑफ द वाटर की, तो बुद्धिस्ट मॉन्क उसको ब्लेसिंग करता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता था। वो वहां पे एक बंदा उसको बताता है कि जैसे देखो इतनी सिंपल सी चीज है कि यदि इस छोटे से पानी के बूंद के ऊपर अपना इतना असर हो सकता है तो अपना पूरा शरीर में काफी सारी मात्रा में पानी ही है, तो हम लोग जो उसके ऊपर डालते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, जो थॉट्स देते हैं उसको, क्या उसका उसके ऊपर असर नहीं होगा क्या? विथ दैट लिटिल नॉलेज पॉइंट या जो उन्होंने सुना था, सडनली उसके अंदर एक शिफ्ट हो जाता है एंड देन शी स्टार्ट्स लाफिंग विद रियल, जैसे बोलते हैं ना एनलाइटनमेंट डॉन हो जाता है तो कैसे दैट हैप्पीनेस डॉन्स एंड यू स्टार्ट लाफिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग स्टार्ट्स हैपनिंग विद अमेंडा आल्सो। उसके साथ भी वही होता है, शी स्टार्ट्स लाफिंग एंड लाफिंग एंड लाफिंग, हंसने लगती है एंड देन फिर वो अपने पूरे शरीर के ऊपर देखते होंगे, देखा हुआ तो उसके ऊपर लिखती है कि आई लव माई सेल्फ, वो हार्ट शेप बनाती है एंड बोलते आई लव दिस बॉडी एज इट इज, जैसा भी मेरा शरीर है मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, दिस इज डिवाइन गिफ्ट टू मी, मैं इसको प्यार करती हूँ। तो इस तरह से वो अपने शिफ्ट ला देती है अपने अंदर एंड देन वैसे जैसे ही वो शिफ्ट आने लगता है तो थोड़ा साइंटिफिक तरीके से इन्होंने बताया यहाँ पे कि अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे यतीन जी ने भी हमें बताया था कि इंप्रेशंस के बारे में बात चल रही थी, तो सडनली कैसे नहीं चेंज हो जाते, तो बोलते क्या है कि तुम्हारे जो सेल्स होते हैं, फिर उन्होंने वो बूढ़ा आदमी दिखाया, एक बूढ़ा आदमी, वो जाके वो कोई बंदी उसको हेल्प करना चाहती है तो बूढ़ा आदमी उसको ऐसे ये कर देता है, निकाल देता है, तो बोलते कि तुम्हारे अंदर के जो सेल्स होते हैं ना, वो सारे सेल्स वो बोलते कि इम्प्रॉपर प्रोटीन प्रोडक्शन की वजह से होते हैं एंड उसके कुछ देर के बाद अगर ऐसे 15-20 साल अगर उसी में अगर कंटिन्यूसली रहते तो उस तरह के इंप्रेशंस उसके ऊपर बैठ जाते हैं एट द सेल लेवल पे जाके बोलते हैं, तो देयर आर रिसेप्टर्स एंड देयर आर पेप्टिडाइड्स, कल भी बताया था, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो लेना बंद कर देते हैं उस नए सिग्नल्स को, वो उसके ऊपर वर्क ही नहीं करता, इसलिए वो ऐसे बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बोलते हैं अगर इसको अगर चेंज करना है तो यस दैट इज आल्सो पॉसिबल, इस क्षण से वो पॉसिबल करना शुरू कर दो। हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन जितने स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस अपने, जितने स्ट्रॉन्ग कर्मा अपने रहे पास में, इट माइट टेक सम टाइम, लेकिन वो शिफ्ट जो है ना, वो शिफ्ट थॉट्स का शिफ्ट, वो पॉजिटिव थिंकिंग का शिफ्ट, जो पॉजिटिव कर्मों का शिफ्ट जो है ना, ये आप इमीडिएटली उसको शुरुआत कर सकते हो। तो बोलते हो जो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि देयर इज अ नीड ऑफ कोर्स करेक्शन, तो वो मूवमेंट को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो जैसे वाटर ड्रिप करता है वो अपने आप को बोलना शुरू कर देती है, आई लव माई सेल्फ, आई लव, आई एम पीस, आई एम हैप्पीनेस। आपने अक्सर गुरुदेव को देखा होगा बताते समय एट द एंड ऑफ द मेडिटेशन, गुरुदेव बार बार इसको रिपीट करते हैं कि यू आर पीस, यू आर लव, यू आर जॉय, आप ही खुशी हो, आप ही शांति हो, आप ही आनंद हो, क्यों उसको बाहर ढूंढ रहे हो? ये अक्सर बार बार अपने आप को बताने से एक दिन अपने सेल्स, अपना बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह से उसको अडॉप्ट कर लेता है, वो चेंज होने लगता है। वो शिफ्ट जो है ना, ये शिफ्ट का होना, जो दृष्टिकोण का शिफ्ट होना, यही ज्ञान का मूल मंत्र बन जाता है फिर अपने लिए। बिकॉज वो जो इल्यूजन्स होते हैं, अलग अलग इल्यूजन्स बोलते हैं अपने मन में जो हमने पाल रखे हैं, उन इल्यूजन्स को निकालने के लिए ये थिंकिंग, ये ज्ञान, जैसे बोलते हैं ना आत्मज्ञान, ये ज्ञान का होना जिंदगी में जरूरी। बाकी चीजों से होगा नहीं होगा तो क्वेश्चन मार्क होता है, बट बोलते हैं योग वशिष्ठ ने बताया कि आत्मज्ञान से जरूर होगा। तो बोलते वो प्रश्न तुम पूछो अपने आप को, व्हाई एम आई हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, इस प्रश्नों की वजह से वो आपका सीकिंग जो है ना, वो जर्नी डेफिनेटली शुरुआत हो सकता है। तो इफ आई चेंज माय माइंड, आई कैन चेंज व्हाट हैपेंस आउटसाइड आल्सो। पीपल हैव दैट सेटअप ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसके बारे में फिर बताते हैं। देन आज उसके बारे में फिर से बात होती है कि फिर भगवान क्या है, कि गॉड, देयर इज नो God who is like sitting there and waiting to punish you for your good and bad things। बोलते ये सारे good and bad things ये अपने ह्यूमन रेस से क्रिएट किया हुआ चीज है, तो ऐसा कोई गुड और बैड नहीं होता है। दैट डजंट मीन दैट कि तुम स्वैराचार में निकल जाओ। याद रखो कि वो इंप्रेशंस कैसे मैटर करते हैं अपनी लाइफ में, अपने कर्म कैसे मैटर करते हैं अपने लाइफ में। तो चूज दैट गुड कर्मा इन अवर लाइफ,
ताकि वो इम्प्रेशंस उससे निकल सकना। जैसे यतीन जी ने कल बताया था, हर सांस के साथ आप ओम नमः शिवाय के साथ बोलो, हर सांस में ओम नमः शिवाय को अपने ला दो। और करदेव गुरुदेव का मेडिटेशन भी देखा होगा तो एग्जैक्टली वही अनुभव हुआ, ओम नमः शिवाय मेडिटेशन गुरुदेव ने लिया, एंड आफ्टर दैट द चेतना का जो स्तर था वो किस तरह से बढ़ गया। तो यही चीज है, इसके बारे में भी हम लोग यतीन जी से रिक्वेस्ट करें कि यतीन जी प्लीज कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन, योग वशिष्ठ के बारे में हमें बताएं। एंड व्हाट इज गॉड, यदि गॉड के बारे में जानना है जिनको नहीं पता है उनके लिए, गुरुदेव का कमेंट्री है पतंजलि योग सूत्रा, और उसमें एक पर्टिकुलर सीडी है व्हाट इज गॉड, उस सीडी को आप जरूर सुनिए। तो गॉड के बारे में जो मन में संकल्पनाएं, अलग अलग रिलीजन में गॉड के बारे में जो मिथ्या पैदा करके रखी है, इल्यूजन्स पैदा करके रखे, कंफ्यूजन्स करके रखे, तो वो सारे कंफ्यूजन्स निकालने में डेफिनेटली इट विल हेल्प अस कि गॉड क्या है रियलिटी में, व्हाट गॉड इज। ओवर टू यू यतीन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का जो सेशन था, जो वीडियो था, ये सबसे पावरफुल रहेगा अगर हमने उसको ढंग से समझा है तो। सोमेश्वर जी ने तो ऑलरेडी बता दिया काफ़ी कुछ। मैं अपनी तरफ से भी जो योग वशिष्ठ में था वही यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इमोशंस के ऊपर एक पूरा कवरेज है योग वशिष्ठ में। और वो कवरेज जो आया था वो लीला पद्मरा की जो कहानी थी उस कॉन्टेक्स्ट में था। तो मैं फिर से एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ। हम लोग जो योग वशिष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं, योग वासिष्ठ ये सबसे महान ग्रंथ समझा जाता है। सारे ऋषियों के जीवन में उन्होंने उसको अमल में लाया, उसको पढ़ा और उसका उपयोग किया। गुरुदेव आज भी रेगुलरली योग वशिष्ठ पढ़ते हैं। तो योग वशिष्ठ की कहानी ये भगवान श्री राम की कहानी है। रामायण में जो उनके जीवन में एक घटना घटी थी और जहाँ पे श्री राम जी और वशिष्ठ ऋषि इन दोनों के बीच में जो संवाद था वो योग वशिष्ठ है। श्री राम जी को वैराग्य आया था अपने जीवन में और उन्हें ये लग रहा था कि इंसान जो कुछ भी करता है और उस हर चीज़ के पीछे उसकी एक भावना होती है कि उसको कहीं पे मुक्तता मिले, कहीं पे फ्रीडम रहे और उसको आनंद मिले। लेकिन उसके लिए जो कुछ भी किया जाता है इस जीवन में, चाहे आप सुंदर देखने के लिए कोशिश करें, या फिर आप जैसे वो अमन के एग्जांपल दिया था, या फिर आप अपने आपको सुखी करने के लिए अच्छा अच्छा खाना खाने की कोशिश करें, राइट। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी करते हैं, पैसा कमाएं, कुछ भी करें, लेकिन इन सारी चीज़ों में आनंद नहीं है, क्योंकि एंड में जाके वो खत्म हो जाता है। फिर से नए आनंद के लिए आदमी फिर से ढूंढते रहता है और जीवन भर यूं ही भागता 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 एक दिन पता चल जाता है कि कहीं पे सच में आनंद नहीं है। तो उनका प्रश्न यही है कि मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए कि जिसमें शाश्वत आनंद हो। एक बार उस राह पे चलूं तो फिर से कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़े, एक ही चीज़ पकड़ के रखूं जिसके माध्यम से मुझे आनंद मिल जाए। और वो क्या हो सकता है? तो उसके लिए वशिष्ठ ऋषि उनको जो भी ज्ञान देते हैं वो पूरा श्री राम जी का वैराग्य लेके, वशिष्ठ ऋषि जी का ज्ञान, ये सारे लेके योग वशिष्ठ की कहानी बनी है। तो इसमें हमने देखा कि लीला और पद्म राजा, इनकी कहानी हम देख रहे थे। लीला अपने पति के मृत्यु के बारे में चिंतित होती है कि उसकी मृत्यु हो गई तो उसको उससे दूर नहीं होना चाहिए, तो देवी सरस्वती की प्रार्थना करती है और कहती है कि मुझे अपने पति के साथ हमेशा रखे। तो उसमें पद्म राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो देवी सरस्वती आती है, फिर उसको अपने लीला के पति का मतलब पद्म राजा का अगला जन्म दिखाती है कि उस जन्म में क्या हो रहा है। तो उस जन्म में देखते हैं कि वो एक नया राज बना चुका है, उसका जीवन ऑलरेडी वहाँ पे शुरू हो चुका है। तो लीला को ये समझ में आता है कि जो मैं देख रहा हूँ, वो देख रही हूँ, वो सच है, लेकिन जो मैंने अपने अंदर में देखा, क्योंकि जो राजा का अगला जीवन था वो तो उसने आंखें बंद करके ही अपने सूक्ष्म देह से देखा, तो वो सच है, तो फिर वो झूठ है। तो उसका जो ये भ्रम है कि जो देख रहे हैं वो सच है और जो सपने में देख रहे हैं वो झूठ है, तो ये जीवन भी सपना हो सकता है, ये कंसेप्ट दिखाने के लिए लीला को उसका पिछला जन्म दिखाया जाता है। पिछले जन्म में जाके देखते हैं कि वहाँ पे भी ऐसे ही इमेजिन किया था उस पद्म राजा ने कि जो पहले ब्राह्मण था कि मैं आगे जाके राजा बनूं, तो फिर वो राजा बनता है, वो पद्म राजा अभी के जन्म में होता है। तो कहते हैं कि ये जो सपनों की श्रृंखला है, एक के बाद एक ये बनती जाती है, और फिर इस श्रृंखला में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा जीवन आज चल रहा है वो कभी सपना भी हुआ करता था। तो फिर ये कैसे होता है, ये सारा श्रृंखला कैसे बनती है?
उसमें फिर कई बाकी चीजें आती कि सूक्ष्म देह क्या होता है या अतिवाहिक देह क्या होता है, ये आज का फिजिकल शरीर क्या होता है। ये सारी बातें आते आते फिर अनेक प्रश्न आते तो जिसमें एक भावना के ऊपर भी आती है। हालांकि ये भावना का प्रश्न एक मृतक के दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि श्री राम जी वहाँ पे पूछते हैं कि जैसे पद्म राजा के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि विदुरथ राजा की मृत्यु होने के बाद फिर वो यमराज के पास गया। उसने इमेजिन किया कि उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसके अंतिम संस्कार के पिंडदान वगैरह किया, हाँ, इसलिए उसको अच्छे संस्कार लगे और इसके बाद फिर वो अपने पहले जन्म में आ गया। तो ये दोनों ना बहुत चतुर हैं, श्री राम जी और वशिष्ठ ऋषि। मुझे पढ़ के ऐसे लगता है कि इस तरह का डायलॉग जब जैसे कोई इंटरव्यू होता है ना, डिसाइडेड प्री डिसाइडेड इंटरव्यू होता है ना, उस तरह का है कि कोई प्रश्न पूछने वाला एकदम पकड़ लेगा प्रश्न करने के लिए और उत्तर देने वाला उससे भी ज्यादा होशियार होता है। वो उसके सामने ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देगा कि हाँ ये है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसे देगा कि जिसके ऊपर प्रश्न फिर से पूछा जाए। हाँ, सोमेश्वर में हम लोग हमने इंजीनियरिंग जो किया था ना, तो उसमें हमारे साथ ये होता था। थोड़ा हटके है लेकिन ये हम देखते थे कि जब वाइवा देने के लिए बैठे हैं किसी टॉपिक पे और हमें ये पता है कि अभी मुझे यही टॉपिक पक्का है, इससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा आता नहीं, और सामने वाला अगर कुछ और पूछने लगे तो क्या करें। तो हम लोग क्या करते थे, जब आंसर करना शुरू करेंगे ना तो सामने वाले के माइंड को पकड़ लेते थे। क्या करते थे हम लोग, उन्होंने पूछा एक, हम जवाब देना शुरू करते हैं और धीरे 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 जो मुझे पता है ना उसके ऊपर आ जाते थे और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते थे। तो बात ये होती है कि वो टीचर हमको उसी के बारे में पूछेंगे, अच्छा ये बोल रहा है कि ये बता वो बता, तो हम उनको अपने इसमें ले जाके अच्छे मार्क लेके आते थे। सही है ना सोमेश्वर? ऐसे ही करते थे। श्री राम जी और वशिष्ठ ऋषि के बारे में यही हो रहा है। हाँ, वशिष्ठ ऋषि उनके पास ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें बताते जाते हैं, उनको पता है ये पूछा ये बताया तो श्री राम जी इसके ऊपर प्रश्न पूछ लेंगे। भी पद्म राजा के कहानी में पिंडदान का इंपॉर्टेंस लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने डाल दिया एक उनके सामने, श्री राम जी के सामने, और श्री राम जी ने पकड़ लिया कि अगर पिंडदान करते हैं तो फिर जिसका कोई पिंडदान नहीं होता उसका क्या होता है। ठीक है, कई लोग तो अनाथ मरते हैं। तो ये सारी प्रश्न इस तरह से आते गए, हम उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि आज का टॉपिक भावना का है। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं उनको कि देखिए जो कुछ भी इंसान के जीवन में हो रहा है, हाँ, उसके मृतक की भावना क्या होती है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर वो तय होता है। तो हम वो एंगल से न जाते हैं, भावना के एंगल से देखते हैं कि भावना कहाँ से आती है, क्या इंपॉर्टेंस है भावना का। तो ऐसा एक श्लोक कहा है कि देश देह देश काल क्रिया द्रव्य सामग्री, इसके हिसाब से जो भी अपनी भावनाएं, मतलब वो हिसाब से सारी भावनाएं आती हैं। अभी सोमेश्वर ने भी कहा था कि खाना हो सकता है, हमारी संगति हो सकती है, हम किस जगह है, हाँ, हमारा काम किस तरह से चल रहा है, और उसके बाद हमारी साधन सामग्री क्या क्या है, उस हिसाब से सारी हमारी भावनाएं आती हैं। और जिस समय जो भावना उठती है वो उतनी स्ट्रांग भी होती है। तो उस स्ट्रांग के हिसाब से, कितनी स्ट्रांग भावना है उसके हिसाब से फिर हमारा जो आगे का निर्णय होता है, हमारे जो विचार आते हैं और उसके बाद हम जो करते हैं तो उसके बारे में बातें होती है। देखिए भावनाओं को अगर हम 7 स्तर में जोड़ा जाए ना तो टिपिकली वो चित्त के स्वरूप पे आती है, हमारी जो स्मृति है उस लेवल पे आएगी, क्योंकि वही सारे इंप्रेशन है। इंप्रेशन मतलब क्या है कि हमने जो पहले कही तो हमारे मन में पकड़ के रखे हैं। और यही आज के सेशन में कहा गया था, आज जो वीडियो देखा था हमने उसमें यही सारी बातें कही थी कि भावना कहाँ से आती है। और उन्होंने कहा था कि आपकी जो इम्प्रेशंस बने हैं, आपने जो कई सारे डीप इम्प्रेशंस पकड़ के रखे, वही आपके सामने आते हैं। तो क्या हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? हम में से मैं कभी किसी समय पे आपको लेके जाऊंगा कि, और उदाहरण रियल एग्जांपल से पिछले कुछ सालों के, आज हम थोड़ा थोड़ा अवेयर हो रहे हैं। मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। एक उदाहरण है कोलगेट टूथपेस्ट का। एक ज़माने में हमारे लोग नीम, उसके बाद कोयला, है ना, नमक, इन चीज़ों से दाँत मांजते थे। वो बिटको करके काली टूथ पाउडर आती थी, अगर बिटको की याद है आपको तो या फिर बंदर छाप, कुछ तो लाल दंत मंजन, ऐसी चीज़ें थी। तो इनमें ये सारी चीज़ें हुआ करती थी और उससे दाँत मांजते थे। लेकिन हमारे ऊपर इतनी एडवर्टाइजिंग, इतना बम्बार्डिंग किया गया कि जिनमें सचमुच वैल्यू थी वो छोड़ के हम लोगों ने फिर वो एक वाइट क्रीम वाला कुछ तो, जिसको अभी एक्चुअली टूथपेस्ट नहीं, उसको डेंटल क्रीम कहा जाता है, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, है ना। हमारे इम्प्रेशंस, और वो भी बचपन से, इतने बदलते गए
मैगी जैसी चीज़ है कि बस 2 मिनट में हो जाएगा। एक ज़माने में जहाँ पे लोगों के इंप्रेशंस पक्के थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बच्चों के दिमाग पे बार-बार आ गए, तो आज हर जगह मैगी, नूडल्स इसका इंप्रेशन बहुत आ गया सामने। पार्टी की कंसेप्ट जब टीवी पे दिखाई जाती है तो पार्टी के कंसेप्ट में पिज़्ज़ा ही दिखाया जाता है। ठीक है, भले ही वो पिज़्ज़ा की एडवर्टाइज़ नहीं हो, लेकिन एडवर्टाइज़ होती है कि आप पिज़्ज़ा एन्जॉय करो। अब हमारे साथ अगर मैंने जैसे देखा है, मेरे कुछ दोस्त हैं कॉलेज के, उनका एक जो ग्रुप बना है, वहाँ पे अगर एन्जॉयमेंट की कोई कंसेप्ट रही, तो वो वाइन की ही होती है। दुःख की कंसेप्ट रही, तो भी वाइन ही होती है। गर्लफ्रेंड मिली, वाइन एन्जॉय करो, गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, गम में जाओ, वाइन एन्जॉय करो। राइट? हर चीज़ के लिए पार्टी है। तो एक ऐसे कहते हैं ना, परीक्षा में अच्छे मार्क मिले पार्टी है, परीक्षा में बुरे मार्क मिले चल दारू पीते हैं। हर चीज़ का वही उदाहरण दिया गया है। देखिए हमारे ब्रेन को किस तरह से ट्यून करते आ रहे हैं अभी तक कंसिस्टेंटली, एक के बाद एक। क्यों? कंसिस्टेंटली वही इंप्रेशंस हमारे मन पे बने हैं। अभी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हम इनको तोड़ नहीं सकते इन इंप्रेशंस को? ये हमारे हाथ में है कि नहीं है? तो ज़रूर है। उसने जो कहा था सेशन में कि अपने इंप्रेशंस आप तोड़ सकते हैं। देखिए मैं पहले भी कहा था, प्रॉब्लम समझ में आ गई ना तो सॉल्यूशन मिल गया। हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं पता, हम अवेयर ही नहीं रहते कि प्रॉब्लम ही नहीं पता क्या है करके। एक और इसका इतना भयंकर परिणाम होता है। आप 2 एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, चलिए। कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, यूपीएससी की है या कोई एग्ज़ाम की, इंजीनियरिंग की है, जो भी है। कल परीक्षा है, 10वीं की समझो, कल परीक्षा है और आज आईपीएल की मैच चल रही है, सेमीफाइनल चल रही है, फाइनल चल रही है। दिमाग पूरा घर में बाकी के लोग अगर देख रहे हैं आईपीएल, तो पूरा दिमाग उसके ऊपर कि इधर सामने किताब है, लेकिन किताब में जो लिखा है वो दिखाई नहीं देता। हाँ, कितना गहरा इफेक्ट है देखिए इंप्रेशंस का। जो हमारे सामने वो तक दिखाई नहीं देता, लेकिन जो ब्रेन पढ़ रहा है उसको आता है कि हाँ वहाँ पे मैच चल रही है, तो सारा दिमाग उधर, कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैच में बहुत इंटरेस्ट है, क्रिकेट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसी चीज़ कही जाती है। ठीक है, सारा दिमाग उधर पड़ा है और जब उसके पीछे लगा रहता है तो चलो आज 1 ओवर देख लेता हूँ, 2 ओवर देख लेता हूँ, फाइनल है, ये है ना, इस तरह से हम अपने आप को कन्विंस करते हैं। मन इतना भयंकर है, इतना भयंकर है कि आपको अगर कुछ अच्छा करना रहा ना तो इतने एक्सक्यूजेस देगा। मतलब मैं कहूँगा कि हरीश साल्वे क्या, कपिल सिब्बल क्या, इनके आर्ग्यूमेंट्स भी आपके सामने फीके पड़ जाएँगे। उनको अगर सामने बिठा दिया कन्विंस करने के लिए, इतने बड़े-बड़े वकील, तो भी आपको कन्विंस नहीं कर पाएँगे। मन आपको उससे अच्छा कन्विंस कर देगा कि जाके मैच देख ले। 2 ही ओवर से देख ले। हाँ, और वो जाके देख के आता है, मैं उसका भी इफ़ेक्ट बताता हूँ कि देख के आता है, फिर पता चलता है थोड़ा पोर्शन रहेगा, ये करना है तो और स्ट्रेच करते हैं। लेकिन वीडियो का इफ़ेक्ट भी इतना भयंकर होता है कि सामने पढ़ाई करने के लिए बैठे, तो ये जो इंप्रेशंस आते हैं वो दिमाग में घूमना शुरू होते हैं। ना फ़ोकस होता है, ना कंसंट्रेशन होता है और परिणाम जो होना है वो दिखाई देता है। इसलिए आज जो कहा गया था कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके भावनाओं का ही इफ़ेक्ट है। आपके विचार तो बाद में आते हैं, भावना तो उससे पहले के लेवल पे है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्रिकेट में इंटरेस्ट है क्या? हम जो पकड़ के बैठे हैं ना कि क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग है। फेयर एंड लवली क्रीम बहुत अच्छा होता है और आजकल तो फेयर एंड हैंडसम भी निकल गया आदमियों के, मर्दों के लिए भी। ये जो चीज़ें हैं, ये इनमें इंटरेस्ट है या हमारे मन में है? अगर क्रिकेट इंटरेस्टिंग होता तो किसी रशियन को या जापानीज़ को बोलो कि भाई देखो, वो बोर होके भाग जाएगा, बोलेगा ये क्या है, इतने सारे लोग एक गेम के पीछे भागते हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता। वो हमारे ऊपर इंप्रेशन बनाया गया है, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। अगर इस बात को हम समझ लें, तो कि मेरे ऊपर जो इंप्रेशंस है, जो चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जिस चीज़ को मैं अच्छा समझ रहा हूँ, चाहे वो खाना हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो किसी का शरीर हो, है ना? ये बात अगर हमारे मन में आ गई, इस बात का अवेयरनेस आ गया, तो यूँ देखिए कि हमारे डिसीजन कितने आसानी से चेंज हो सकते हैं। वही स्टूडेंट, वही बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको बोला क्रिकेट मैच है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट बहुत बोरिंग है, उसके नेगेटिव इंप्रेशन लेके आओ, ये मेरे लिए नुकसानकारक है, उसको दूर रखो। क्रिकेट देखने जाऊँगा तो उल्टी हो जाएगी, इस तरह से भी इंप्रेशन, आपको जो करना है करिए, आखिर मन ही है, उसको ट्यून कर दीजिए। तो आदमी पूरा ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, दिमाग में वो विचार भी नहीं आएगा, अच्छा जीवन बनेगा, अच्छा रिजल्ट भी लेके आएगा। समझ गए इस बात को? अब ये कैसे हो सकता है? तो हमारी भावनाएँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा देखा जाना चाहिए। यूँ कहा गया है कि मैं कौन से देश में हूँ। मेरे देश का मतलब है कि संगति क्या है, आजू-बाजू में मेरे लोग किस तरह के हैं, किस तरह का वातावरण है। मैं सटल वाइब्रेशंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वशिष्ठ ऋषि ने तो बाद में कहा था कि अपने देश में या संतों के देश में क्यों रहना चाहिए, वो मैं कभी बाद में बताऊँगा। लेकिन वो उसके वाइब्रेशंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देश मतलब मेरी संगति क्या है, आजू-बाजू के लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, वो है। मैंने क्रिया क्या कर रहा हूँ, जीवन में कौन से प्रोसेसेस कर रहा हूँ,
क्या मेरा सारा फोकस ये मूवीज देखना, एंजॉय करना इसके ऊपर है, या समय मिला तो चलो मैं अपनी सांस के ऊपर ध्यान देता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, क्रिया करता हूँ, इसके ऊपर मेरा फोकस है। ये है हमारी क्रियाएं कौन सी घटती है, किस इंटेंसिटी से हम क्रिया करते हैं। अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी भी एक अपनी भावना अंदर आ जाती है। शुरू में जो पढ़ाई बोर लगती है, उसको बार बार पढ़ने लगे तो वही इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। हमें बोर इसलिए लगता है कि समझ में नहीं आता। योग वशिष्ठ की किताब लीजिए, कितने लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, है ना। कहते तो ये है कि भाई पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन फिर थोड़ी देर में नींद आ जाती है, बोर लगने लगता है और इसलिए छोड़ भी देते हैं। जो शास्त्र शुरू में बोर होना लगता है, लेकिन प्रयत्न किए, बार बार अभ्यास किया, उसका पढ़ाई करना शुरू किए, तो आपकी स्थिति डेफिनेटली ऐसी बन जाएगी। कई सारे लोग हैं जिन्होंने योग वशिष्ठ पढ़ा तो उनकी स्थिति ऐसी बनती कि कुछ और पढ़ने का मन ही नहीं होता। इतना वो उसका भी एडिक्शन बन गया है अभी कि चलो कुछ पढ़े ना तो योग वशिष्ठ ही पढ़े। मेरे घर वाले तो परेशान हो जाते कई बार, बोलते हैं कि इसको कुछ पकड़ो तो ये योग वशिष्ठ ही शुरू करता है। बात एक तरह से गलत भी है, दूसरी तरफ से सही भी है। आपके जीवन में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है ना, तो इंटेंसिटी उसकी इतनी होनी चाहिए कि आप बार बार वही बातें करें। आप अगर एस्ट्रोफिजिक्स में जाना चाहते हैं, सोमेश्वर का बेटा है उनका, अगर वो कुछ साइंटिस्ट बनना चाहता है ना, तो अपने जीवन में जब तक वो बार बार वो बातें नहीं करेगा, वही उसके कोई भी सिचुएशन देखे वही बातें नहीं करेगा ना, उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा कि वो चीज इसका मतलब है कि उसका कॉन्शियसनेस, जिस चीज में आप मास्टरी करना चाहते हैं, उसका कॉन्शियसनेस और आपका कॉन्शियसनेस दोनों जब तक एक नहीं हो जाते ना, तब तक वो सिद्धि नहीं आती। और जब सिद्धि आ गई तो सारा ज्ञान अपने आप आपके सामने आ जाता है। ये मेरा अनुभव है। उतनी पढ़ाई करो, उतनी बातें करो, अपने आप वो सारी चीजें आती। जीवन में सक्सेस का यही एक मंत्र है, क्या रहेगा कि उस जो कॉन्शियसनेस आपने पकड़ा है उसके साथ एक हो जाओ। तो इसके लिए प्रयत्न उतने ही करने पड़ते हैं। ये जो भावनाएं हमारी होती हैं, जो शुरू में हमको तकलीफ देती है, वही भावनाएं हम बार बार उसको बदल सकते हैं। पढ़ाई करने बैठे बोर होता है, प्रयत्न करो, अपने आप को इंटरेस्टिंग लगना शुरू होता है। तो भावना के बारे में ये कहा गया है कि आप बदल सकते हैं आपकी भावनाएं, लेकिन उसके लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। तो कैसे होनी चाहिए? सबसे पहली बात होगी कि आपके सत्संग होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये वीडियो जब खत्म हो जाएगी ना, तो हम ऋषि जी के कुछ वीडियो देखेंगे। उन्होंने मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए गए हैं, जो एक्चुअली इस योग वशिष्ठ में पहले कवर हो चुके हैं। 4 द्वारपाल, भावनाओं का विषय बाद में आता है, लेकिन हम वो भी देखेंगे। उन 4 द्वारपाल में से एक है जो मोक्ष के, मैं अपने लिए मोक्ष की अगर डेफिनेशन रखूं एक आम आदमी के लिए, तो मोक्ष मतलब उसका जो गोल रखा है वो। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपका मोक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, ठीक है। उसके बाद आप जीवन के मोक्ष के बारे में बात कर सकते हैं। सक्सेस के लिए ये हो सकता है, डिसपैशनेटली फॉलोइंग योर पैशन, ठीक है। मेरी जो पैशन है सीए बनने की, वो फॉलो करूंगा, लेकिन वो इतनी डिसपैशनेटली करूंगा कि उसके पीछे मैं पागल नहीं हो जाऊं। करूंगा सब कुछ, लेकिन ऐसा बाकी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये अभी जीवन में उसका ध्यान नहीं रहा, उसका सेंसेस ठीक पे नहीं है, बिखर चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना जीवन का गोल प्राप्त करूंगा। तो ये छोटे छोटे मोक्ष भी लेकर आ सकते हैं जीवन में, कि आज ये करना है, कल वो करना है। एक एक घटना में, एक एक मोक्ष में हम जी सकते हैं। बड़ा गोल हमारा वही रहेगा। तो आपको क्या करना है? आपका सत्संग अवश्य होना चाहिए, ठीक है। सत्संग रहे, उन लोगों के साथ रहे, तो आपकी भावनाएं वो उस हिसाब से बदलती जाती। देखिए, खाना क्या करना है, क्रिया करना है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है वो है हमारा एनवायरमेंट। हाँ, हमारा देश में मैं कहूँगा, आप जो टीवी देख रहे हैं, आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, आपके आजू बाजू के जो लोग हैं जो आपके साथ जिस तरह की बातें करते हैं, ये आपके हाथ में ज्यादातर नहीं होता, और इसी के ऊपर आपको काम करना होता है। तो ये देखिए कि आप उस पर काम करें। अपने दोस्त कौन से हैं उसको चूज करें। कभी कभी ये होता है, अच्छा, ये चूज करने में या उनको अवॉइड करने में भी क्या होता है कि हमारे ऊपर एक डर रहता है। मैं यूं कहूँगा, ये मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, उनका नाम चंद्रशेखर था। दिखने में एकदम, मैं किसी के देखने के बारे में यूजुअली कहूंगा नहीं, लेकिन देखने में ऐसे कोई हैंडसम वगैरह ऐसे नहीं थे, एकदम ऑर्डिनरी इस तरह से। और पढ़ाई में भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, तो उन्हें एक इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप ज्वाइन करना था, पर वो ग्रुप में उनको एंट्री नहीं मिली। कॉलेज के ज़माने की बात थी। फिर दूसरा एक था जो बहुत एक्टिव था, मस्ती करने वाला ग्रुप था, तो कहीं पे रिकग्निशन चाहिए था कि मैं इन लोगों के साथ जाऊँ। तो वो जो मस्ती करने वाला ग्रुप था, उनका काम वही था, लंच के बाद जाके स्मोकिंग करो। पीछे पान की टपरी थी कॉलेज के, तो वहाँ पे जाके स्मोकिंग शुरू करो। तो वो रिकग्निशन पाने के लिए भी इन्होंने जाके स्मोकिंग शुरू कर दिया। दूसरे एक दोस्त थे जो अपना घर छोड़ के एकदम
पक्का, क्या कहूँगा, ब्राह्मण ही कहे, वो पक्का स्पिरिचुअल थे जी। घर में तो सारे कुछ प्रोसेसेस होते थे, लेकिन जब बाहर गए मुंबई में अपने दोस्तों के साथ रहने लगे तो दोस्तों ने पार्टी को बुला लिया और फिर कहा कि यार ये वाइन है, हमारे साथ ज्वाइन करोगे, अच्छा रहेगा, मतलब कंपनी रहेगी। तो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डर था कि अगर ये दोस्त चले गए तो क्या होगा। और इस डर की वजह से उन्होंने वो आदतें भी लगा ली जो नहीं कर लगानी थी। उनके घर में वो बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। क्यों होता है ये चीज़ें? हम भावनाओं के अंदर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसके पीछे डर रहता है। ठीक है, ये सारी भावना का अगर बेस है कि हम कोई चीज़ को पकड़ते हैं तो उसका एक प्राइमरी रीज़न होता है कि डर। और अगर इस डर को हम जीत सकते हैं, डर किस बात का होता है कि मेरा क्या होगा, मेरा नुकसान होगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या, राइट? या फिर मेरे दोस्त छूट जाएंगे, मेरे रिश्तेदार छूट जाएंगे, मुझे जीवन में पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो सुख नहीं मिलेगा। इस तरह की भावनाओं की वजह से हम सारी अपराध करते हैं, सारे गुनाह कर देते हैं। लेकिन एक बात अगर हमें सच में समझ में आ गई कि ये जो डर है ये बहुत ही क्या अनरियल है, असत्य है। किस बात का डर लेके बैठे हैं हम लोग? हाँ, आदमी को अगर सबसे ज़रूरतें बहुत ही कम है तो हम तो देखते कि परमेश्वर ने क्या कहेंगे, हर पंछी का, हर जीव का, जो भी इस जीवन में है, सबका पूरा इंतजाम करके रखा है, सबके लिए सब व्यवस्था करके रखी है। हम ही है कि जो एक डर की वजह से या फिर डर के बाद आते हैं ग्रीड, लोग, उसकी वजह से हम अपना नुकसान कर लेते, कहीं कहीं कितनी सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं। अगर ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, जीवन की रियलिटी समझ में आ गई ना, तो किसी बात का डर ही नहीं है। कल इसीलिए मैंने कहा था, सो व्हाट का करिए। अपने मन में हमेशा प्रश्न आना चाहिए, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ? डर होता है, सो व्हाट। ये आदमी चला गया, सो व्हाट। क्या होता है? जीवन को जरा देखिए, सब पता चल जाता है कि ये सब सपना ही है। और इसीलिए ये सपने 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 जब समझ में आते हैं तो फिर ना डर रहता है, डर नहीं रहा तो फिर ये भावनाएं भी नहीं आती कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भावनाओं के इंप्रेशन में भी हम पढ़ते नहीं है और आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि हमारा सत्संग अगर अच्छा रहा, हमारा इंप्रेशंस अच्छे बनाने के लिए, हम भावना अच्छा बनाने के लिए हमारा सत्संग अच्छा रहना चाहिए, ग्रुप अच्छा रहना चाहिए। वो एक बार हो गया तो हमारी भावनाएं भी फिर अपने आप नियंत्रण में आती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। वशिष्ठ ऋषि ने जब वो 4 द्वारपाल के बारे में कहा था ना, तो उन्होंने ये बात को इंसिस्ट किया था, सत्संग ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे सस्ता है, सबसे आसान है। ज्ञान पाने के लिए आपको गुरु को ढूंढना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, विचार अपने आप पे नियंत्रण करने हैं तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अलग अलग होती है, पर एक चीज़ जो आसानी से हो सकती है वो है सत्संग। वो तो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो। और ये जो डर है कि मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हूँ, ये सब ये फिर नहीं रहेगा। भावनाएं सब, आप यूँ कहूँगा कि आपकी भावनाएं अपने आप में नियंत्रण आ जाएगी, सत्संग अगर अच्छा रहा तो थोड़ा इसको देखें। आज आपका हम लोग का सब ये सत्संग चल रहा है, मैं आपसे कुछ सीख रहा हूँ, आप मुझसे कुछ ले रहे हैं, ये सत्संग ही है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो दिन भर देखिए इसका इफेक्ट, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, दिन भर देखिए इसका इफेक्ट कैसे कैसे होता है। मेरे कई सारे जो दोस्त हैं जिन्होंने ये योग वशिष्ठ पढ़ा, उनके भी उन्होंने बताया अनुभव कि कितने बड़े दुख आए थे, लेकिन ये पढ़ना शुरू किया, वो सारा दुखों का इफेक्ट ही नहीं लगा। अब लगता है कि हाँ, जीवन इज अ प्ले, आई एम एंजॉइंग इट। इस तरह की भावना लेके आते हैं। तो ये आज का जो वीडियो था ना, उसमें भावनाओं के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई थी, तो इसको थोड़ा फिर से एक बार अपने आप से आज हो सके तो मेडिटेट जरूर करिए भावना के ऊपर, कि मेरे मन में जो भी आते हैं, अगर मेरे को मुझ में कोई जो षड रिपु है ना, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, अगर ये मेरे ऊपर कहीं असर डाल रहे हैं तो कहीं तो वो भावनाओं का असर है। और वो भावनाएं कहाँ से आती है? तो भावनाओं का ऊपर इफेक्ट यही होगा कि कहीं पे मैंने इंप्रेशंस लेके आए थे, इसकी वजह से भावना है, उनसे छुटकारा पा लीजिए और फिर देखिए अपने जीवन को। हम इतना सुंदर बन जाता है, विश्वास करिए, मैं अपने मन से बार बार इसको कह रहा हूँ कि चीज़ों को देखने का हमारा जो जो हमारी नज़र है वही इतनी बदल जाती है कि एक चीज़ को आप, आजू बाजू के लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं कि एक चीज़ कुछ हो रही है, बाकी सब लोग गुस्सा कर रहे, चिढ़ रहे हैं, और दूसरा एक इनका जैसा बंदा है कि जो कहता है अरे नहीं, इतना इतना सीरियस नहीं है, किसी मैटर को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और फिर आप उनको आसानी से कन्विंस भी कर सकते हो। और इस वीडियो में जैसे कहा था, जो सोमेश्वर जी ने भी कहा था कि हमारे अंदर का जो इफेक्ट है वो बाहर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है, क्योंकि
बहुत पॉजिटिविटी रही ना, तो इतनी स्ट्रांग रहती कि आपके आते ही बाजू के लोग भी सब वो ऑरा में आ जाते हैं, उनको भी लगता है कि अरे हाँ कुछ तो है ना। वो पॉजिटिव विचार भी मन में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात को देखें, भावनाएं अपनी कि कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है, कैसे माना जाता है। बार बार योग वशिष्ठ में यही कहा है कि सत्संग रखें, अच्छे लोगों के साथ रखें। और ये बात आज यहाँ पे जो कही थी कि हमारी भावनाओं से ही हमारा अगला जीवन बनता है, आज हम जो भी बनते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था ना कि सुबह उठते ही देखिए कि आई विल मेक माई डे, मेरा जीवन आज का दिन क्या है वो मैं तय करूंगा। ये नहीं होगा कि कोई आके तय करेगा, उसने एक्शन की और फिर मैंने रिएक्शन दी ना। कई बार यही होता है कि हम रिएक्शन में चले जाते हैं, तो रिएक्शन में नहीं, हमें एक्टिव रहना है, हमें एक्शन करनी है। तो ये कहीं तो कहा गया है कि डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। खैर हम उसमें ज़्यादा जाते नहीं, अगर हम अपने अंदर में जाना चलेंगे, अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, तो पता चल जाता है कि अगर मेरी भावनाएं मैंने नियंत्रण में रखी, और मेरी भावनाएं नियंत्रण में क्यों रखूं, कैसे रखूं, तो ज्ञान के माध्यम से कि क्यों ऐसे हो रही है, तो उसको डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। फिर तो मेरी दुनिया मैं बसाऊंगा, कोई और आके नहीं बसा सकता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकना चाहिए आज के लिए। एक बात मैं कहना चाहता था कि भावनाएं अगर हमारी ऐसी हैं, कई बार ये होता है, मन में प्रश्न आता है कि मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में नहीं है तो ऐसा मत सोचिए। हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हमारी भावनाएं हम नियंत्रण नहीं कर सकते। हमें बहुत शक्ति है, बस सही मार्ग उसमें होना चाहिए। सत्संग में आइए तो पता चल जाता है कि किस तरह से भावनाओं को नियंत्रण में करना चाहिए। अगर एक भावना बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है लेकिन मिठाई बहुत पसंद है, और वो मिठाई आपको देखने के बाद आपका पूरा उथल-पुथल करा के लेके आते हैं, और फिर बाद में इंसुलिन ज़्यादा लेना पड़ता है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने मिठाई नहीं खानी है, पर वो भावना मुझ में काफ़ी प्रबल हो जाती है, मुझको तकलीफ देती है, तो क्या किया जाए? तो उसके एग्ज़ैक्टली अपोज़िट भावना आपको डेवलप करनी है। ठीक है कि ये एक बला है, इसको खाऊँगा तो मुझे उल्टी हो सकती है, मुझे तकलीफ हो सकती है। इस बात को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो एक दिन ये हो जाएगा कि सचमुच गुलाब जामुन देखेंगे तो आपको नौसिया आ जाएगा। अरे नहीं, देखना नहीं है। वो देखने की जो स्वीट्स है, देखनी ही नहीं है। इतना एक तरह से भावना आप डेवलप कर सकते हैं। वही चीज़ है, जिसके ऊपर प्यार है उसके ऊपर हम नफ़रत भी कर सकते हैं, है ना? कि हमने जीवन में देखा है, रिलेशंस में होता है, किसी के साथ प्यार हो जाता है, बाद में उसके बिहेवियर की वजह से हमें उसके बदले, जिसको देखने, कभी एक समय था कि जिसको देख के बड़ा मन में एकदम प्रफुल्लित हो जाता था, एकदम खुशी हो जाती थी किसी को देख के, और वही संबंधों में रह के कुछ इम्प्रेशंस और उसके जो अनुभव होते हैं, तो अगली बार देखेंगे तो अंदर में एक इसी भावना इस तरह से दौड़ जाती है, पाँव से लेके सर तक, कि पूरा खून गुस्से से भर जाता है ना? और फिर एक तरह से डर भी होता है, निगेटिविटीज काफी आ जाती है उस समय। तो ये होता है, हमारी भावनाएं चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है। बस हमें थोड़ा हमारे तरफ से प्रयत्न करना है उसको डेवलप करने के लिए, और ये विश्वास रखना है कि बदल सकता है, कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं रखती। मेरे ख्याल से रुकना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, लेकिन इसके ऊपर ज़रूर काम करिए, ये आपका जीवन बदल देगा पक्का। जय गुरुदेव। Thank you so much, Yatin ji. What an amazing insight about the subject था। कितना बढ़िया अंदर तक लेके गए और सारी चीजें को और ऐसे reinforce करके again उसके बारे में चर्चा हुई। Really amazing. बहुत अच्छा समझाया। हाँ जी दादी, बिल्कुल बहुत बढ़िया समझाया। I agree with you. I saw your chart. बहुत बढ़िया। थोड़ा 2-3 एडिशन भी देखते हैं, इसमें करते हैं कि जैसे यतीन जी ने बताया ना कि कैसे हम लोग वो अपना चीजें उसके बारे में करते हैं, हाउ दैट्स व्हाट यू कैन सी द बैकग्राउंड। यहाँ पे सोम की बात भी निकली एंड साइंस की भी बात निकली। यू कैन सी दैट व्हाट ही चूज, ये उसका ही चोज दिस, उसका ये है। तो जब वो बुलाया गया था ये थीम्स अलग अलग क्या है, तो व्हाट इज द थीम दैट यू वांट, सो ही चोज दिस 2 थीम्स एंड दैट इज व्हाट वी सी। तो ये होता है कहीं डेफिनेटली वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी में साथ साथ लेके आगे बढ़े तो डेफिनेटली चीजें वर्क होने लगती है, समझ में आने लगती है। Just one more, in addition to what Yatin ji said, to change that भावनाएं जो रहती है ना, तो जस्ट थोड़ा एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन है वहाँ पे कि
चेंज करने के चक्कर में घृणा में ना फंस जाना, तो किसी के प्रति वो घृणा उत्पन्न ना हो जाए मन में। जो मदर टेरेसा थी, वो यदि सपोज जो नर्स होती है, वो अगर वो जाके ट्रीटमेंट, वो जो पेशेंट की ट्रीटमेंट करती है, यदि उसके अंदर वो घृणा उत्पन्न हो जाए तो शायद वो उसको ट्रीटमेंट दे ही ना पाए। या जो अपने हेल्थ वर्कर्स होते हैं, या उनके मन में वो जो कचरा पड़ा होता है उसके प्रति अगर घृणा उत्पन्न हो जाए तो शायद वो कभी क्लीनिंग ही ना कर पाए। तो बी वेरी अवेयर ना, ये बोलते हैं ना, ज्ञान जो होते हैं, ज्ञान ज्ञान तभी बनता है एक्चुअली जब उसका रियल एप्लीकेशन सही हो। अदरवाइज इट विल जस्ट रिमेन अ इंफॉर्मेशन, और वो दोधारी तलवार भी होती है, अगर उसको गलत तरीके से परसीव कर लिया तो देन वो आपको काट भी सकती है। बी वेरी केयरफुल, जो चक्कू को जो इसका यूज करते हैं ना, तो हाउ केयरफुल यू आर, हाउ अवेयर यू आर। थोड़ी सी चूक हुई कट, थोड़ी सी चूक हुई कट। बी वेरी अवेयर अबाउट इट। डरने डरने की इस बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू बी फियरफुल अबाउट इट, ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। बट यस, जस्ट बी अवेयर कि यस दिस इज लाइक दिस, यस ओ माय गॉड, वाओ ये ऐसा है। इस अवेयरनेस का साथ जब चलना शुरू कर देते हैं ना, अगेन वो काशी भैया की बात फिर से आती है कि जैसे कैसे बोलते हैं ना कि चेतना के स्तर पे चीजें जो होने लगती है ना, वो बहुत अलग तरीके से। ठीक है ना, हम लोग ये बैठते हैं, सत्संग करें, नो डाउट इट इज इम्पोर्टेंट, बट अगेन इट्स ऑल इंटेलेक्चुअल। बोलते कि जो ओम नमः शिवाय चैंटिंग में जो कल जिन लोगों ने बैठ के अनुभव लिया ना, वो अनुभव तुम्हें कोई जिंदगी में और दे नहीं सकता, या और बिहाफ उस अनुभव को कर भी नहीं सकता। इट इज ओनली यू, सिर्फ आप और सिर्फ आप उस अनुभव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो प्लीज टेक अ टाइम आउट टू कलेक्ट दैट एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ, बी विद दैट चेतना, टू गो डीपर विद इन। ध्यान से मेडिटेशन की भी बात चली, और मेडिटेशन के बारे में मेरा एक दोस्त भी है, इज अ कॉमन फ्रेंड ऑफ यतीन एंड मी, हिज नेम इज विनोद कामले। सो काफी सारा वो इसके अंदर घुस गया है, ये लर्न दैट पाली लैंग्वेज, एंड वो अंदर तक भी गया है, वो श्रीलंका भी जाके आया था टू विजिट वन ऑफ द मॉन्क एंड ऑल दैट। तो मेडिटेशन के बारे में उसने भी कुछ अपने मन के प्रश्न रखे हुए, अगर लोग बोलते ढूंढना चाहते हैं इन प्रश्नों के उत्तर, जरूर हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ही सेड। मैंने उसको इनविटेशन भी दिया था, बोलता है कि वहां पर ऑलरेडी दो ज्ञानी बैठे, मैं उधर आके क्या करूंगा। बोला यू कैन टॉक अबाउट द बुद्धा, तो बोलते क्या मैं बुद्धा के बारे में बात करूं। बोलते देयर इज सो मच ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, लोग जाके पढ़ सकते हैं, और मुझसे तो कई ज्यादा बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने अच्छा खासा इसका स्टडी किया, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू टॉक अबाउट। बट देयर आर बेसिक थिंग्स, जैसे कि क्या मेडिटेशन होता है, ध्यान क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है अपनी जिंदगी में, जो टीचर होता है जो हमें मेडिटेशन पढ़ता है उसका क्या रोल होता है उसमें बारे में, उसका क्या रोल नहीं होना चाहिए उसके बारे में। ऐसे ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे बेसिक प्रश्न उठाए। तो हमने एक मीटिंग भी शेड्यूल किया है ऑन सैटरडे, मैंने यतीन जी को भी इन्विटेशन भेजा था। तो लेट्स सी व्हाट गोस। समहाउ अगर ये सब आ जाए ना लोगों के सामने, तो इट्स वेरी गुड। देयर इज नो नीड ऑफ एनी पब्लिसिटी। वो अपने उसके कुछ अपने विचार है जिसके साथ वो चलता है। सो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। यतीन जी का विचार भी एक्सेप्टेड है, विनोद का विचार भी एक्सेप्टेड। विद दैट एक्सेप्टेंस we'll conclude today's session. Before that, यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर प्रश्न पूछिए। आपके प्रश्नों से पता नहीं हमें यतीन जी से और क्या सीखने को मिल जाएगा। So please do ask question. It's okay to ask questions. So I'd like to open this. हाँ, अपनी भावना और मेडिटेशन के बारे में बढ़िया समझाइए। यस दादी, यस आई एग्री। कुछ मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। काशी भैया ने एग्जैक्टली यही किया, ही फिनिश्ड हिज सेशन अर्ली। बोलते काफी समय से 40-45 मिनट में बात कर लेता हूँ, प्रश्नोत्तर के लिए समय ही नहीं बचता है, तो 20 मिनट में अपना बंद कर दिया मुंह, बता दिया प्रश्न पूछो। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली टू आस्क क्वेश्चन। तो हम लोग भी देखेंगे वीडियो जो सत्र चल रहा है साइंस के बारे में, तो वो तो कल खत्म हो जाएगा। एंड देन जैसे यतीन ने बताया, विल अगेन गो बैक टू ऋषि जी की जो उसके बारे में चीजें हम लोग ही उसको स्टार्ट करेंगे। So that will also continue from day after tomorrow. Tomorrow we'll finish this. What do we know? Now let us see what is it that we know now. What is it already been known by somebody? उसको जानने के हम लोग उसको ज़्यादा कोशिश करें।
What is it that you feel? आप प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, चिंता की बात हाँ, नहीं। मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन यतिन जी ने जो बताया, अ, थोड़ा अपनी भावनाओं की तरफ देखिए, और भावना काम क्रोध मोद मोह जो षड्रिपु से आती है, थोड़ा Is सा it क्विक रिकैप करेंगे क्या possible to करना switch? चाहिए? Please अपना वीडियो अगर शुरू करते तो we can add you to spotlight. थोड़ा मेरा Yeah, please go ahead. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नहीं है मेरा, रतिन जी जो भावनाओं के बारे में बता रहे थे और थोड़ा सा मेडिटेशन करने बोल रहे थे, तो वो थोड़ा सा फिर से रिकैप करें क्विकली। दो तरह की भावना होती है, जो वासनाओं से या डिजायर से हम कहते हैं कि शुभ भावना और अशुभ भावना। तो शुभ भावनाओं के बारे में हम बात करते हैं कि हमें हमेशा वो शुभ भावना ही रखनी चाहिए। अशुभ भावना अगर मन में आती है, अशुभ भावना मतलब कौन सी है कि जिसमें ये इन्वॉल्व है कि हमें काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये षड रिपु है। तो ये इनमें से कोई भावना आती है मन में कि आज मुझे किसी के प्रति क्रोध आ रहा है, किसी के बारे में मुझे अट्रैक्शन लग रहा है, हाँ, या फिर मुझे एक अपनी संपत्ति के बारे में कुछ लग रहा है, या मुझे किसी के बारे में जेलसी है। तो ऐसी जो अलग अलग भावनाएं होती है, तो ये देखे कि ये कहाँ से आती है, इसका ओरिजिन क्या हो सकता है। ओरिजिन यही होता है कि कहीं पे हमारे इंप्रेशन से, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और यूँ समझिए आपके रिलेटेड नहीं है, लेकिन ठीक है, तो उनका कुछ बिहेवियर होता है, हम देखते हैं उसको, और वो बिहेवियर देख के फिर हमारे मन में आता है कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको कितने बार समझाएं। हाँ, इस तरह के मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो वो विचार क्यों आते हैं? अच्छा, इसका हमने जो पूरा आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, एक या कई जितने कोर्सेज किए, सारों का जो जिस्ट है वही यही है कि अपने मन को संभालो, है ना। जो भी पॉइंट्स लिए हमने सब कुछ, वो अपने मन के लिए। तो जब हमारे मन में ऐसी भावनाएं आनी शुरू होती है, किसी के प्रति घृणा निर्माण हो रही है, तो क्यों हो रही है? तो ये पहले सोचे कि मैं अगर किसी के बारे में सोच रहा हूँ कि एक बूढ़ा आदमी है, और उसको यूँ समझिए कि ये समझ में आना चाहिए कि पानी की पीने के बाद ग्लास धोकर रखना, ठीक है, लेकिन वो अभी धोकर नहीं रखता। या फिर घर में आपने नया क्या बोलते हैं उसको एग्जॉस्ट वगैरह बिठाया है, आपकी नानी है, दादी है, माँ है, जो भी है, सीनियर है, बूढ़ी है, वो जब भी तड़का देती है तो वो एग्जॉस्ट ऑन करना भूल जाती है। अभी हमारे मन में इंप्रेशन आते हैं, इसको कितने बार समझाइए, करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। और इसके लिए हमारे मन में गुस्सा भी आता है, घृणा भी आती है। ऐसी मैं 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो इनको एनालाइज करें कि ये ऐसी भावनाएं क्यों आ रही है, ये गुस्सा क्यों हो रहा है ना। तो ये समझ में अगर आ जाए कि मेरे ये इंप्रेशंस बने हैं कि इन लोगों ने ऐसा बिहेव करना चाहिए, या ये चीजें इस तरह से होनी चाहिए, ये कहीं पे ना, ये भावना का पॉइंट हमारे एक्सेप्टेंस का जो पॉइंट है उससे जुड़ा हुआ है। एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। तो हम कहीं पे इमेजिन करते कि ऐसा होना चाहिए, और ये अगर ऐसा होना चाहिए तो हमारी भावना जब उसको एक इमेजिन करती कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें गुस्सा होना चाहिए, राइट। हमारे पास इंप्रेशन क्या आ चुके हैं अभी तक कि ऐसा नहीं हुआ मेरे मन के हिसाब से, तो मुझे गुस्सा होना चाहिए। लेकिन जब नॉलेज में डीप जाते हैं धीरे 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 धीरे, और जब हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं हुआ, तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। दो चीजें कर सकते हैं, एक तो एक्सेप्ट करें क्या ये ऐसे भी हो सकता है कि कोई जाए और तड़का ही ना दे, या तड़का दे तो एग्जॉस्ट ऑन ना करे, अब फिर कोई पानी पिए तो पानी का ग्लास धोकर ना रखे। ये चीजें ऐसी भी हो सकती है, हाँ, वो एक्सेप्ट करें। दूसरी हमारे मन में भावना क्या आ सकती है कि हाँ, हम कंपैशनेट भी रहे कि नहीं, वो बेचारा, उसको ध्यान भी नहीं रहता, उसको हम कितना भी समझाएं, लेकिन उसकी अभी एज नहीं है, उसकी उसका खुद का डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है, जितने इंप्रेशन वो इकट्ठा करके आया है, तो उतना अवेयरनेस नहीं है। शूज आके शूज रैक में नहीं रखेगा, उतना अवेयरनेस नहीं है, कभी आएगा तो आएगा, उसकी भावनाएं बाद में बदल सकती है। तो ये मेडिटेशन हम करें कि जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं, क्या सचमुच वो सही है, क्या वो राइट थॉट्स है, मेरी भावनाएं राइट है कि ये चीज नहीं हुई तो गुस्सा हो रहा है। जरूरी है गुस्सा होना? कोई और होगा तो क्या करेगा। हम देखते हैं जब हम ही खुद नॉलेज में उठ जाते हैं ना, तो कभी हम जिस चीज पे गुस्सा कर रहे थे, आज उसके बारे में हम कंपैशनेट होते हैं, आज उसके बारे में हम ये कहते हैं कि नहीं, ये ठीक है, हो सकता है, अलाउड है। हाँ, उतना फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मन में आ जाती है। तो इन भावनाओं को देखें कि ये भावनाएं मेरी पहले कहीं से मैंने सीखा था कि गुस्सा होना चाहिए करके, और आगे जाके वही हम बदल देते।
अपने बच्चों के साथ ही देखिए, अपने बच्चे कई बार वही रिएक्शन देते हैं जो हम देते आ रहे हैं, है ना। अगर किसी चीज पे हमने गुस्सा कर दिया, पर्टिकुलरली किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो एक ने, बड़े ने अगर छोटे के ऊपर कोई रिएक्शन देनी शुरू की, तो छोटा भी उसी बात पे आगे जाके वही रिएक्शन देता है, और फिर उसको समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये रिएक्शंस अलग अलग हो सकती है ना। तो ये देखिए कि हमने किसी बच्चे को मार दिया, थप्पड़ लगा दिए 2 छोटी सी बात पे, तो कल वही जाके अब उसने सीख लिया कि ऐसा होता है तो थप्पड़ लगाना चाहिए। तो ये भावनाएं देखिए कि कहाँ से आ रही है, मैंने कहीं से कैच की है या फिर ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। यूजुअली हमें पता चलता है कि हमने ये सारी कैच की है, तो उसको फिर ज्ञान के माध्यम से बदल सकते हैं कि नॉलेज क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, इस तरह इस सिचुएशन में क्या भावना आनी चाहिए, वो भावनाएं फिर हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, फिर हम बदल सकते हैं, उसको मॉनिटर करें। Amazing insights, ना यतीन, very nice. अच्छा, आज का वीडियो था ना पंकज जी एंड यतीन, and they were talking about these emotions, है ना। तो at one point of time वो ये भी चीज हमें बताते थे, this is just another perspective about these emotions, तो बोलते हैं कि the emotions जो होते, भावनाएं होती है ना, that in itself are not good or bad. ये तो बोलते ये हमारे मन के कॉन्सेप्ट हमने बना लिए हैं कि चीजें अच्छी या बुरी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी यतीन जी की बात करने में आती, जो बच्चा होता है वो बच्चे को बैठ कर पढ़ाई करनी है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में बैठ के सोच रहा है क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट उसके लिए बुरा है नेचुरली, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू फोकस अबाउट इट, राइट। अब वो वही बच्चा है, उसने अपना 4-5 घंटा 6 घंटा आराम से पढ़ाई कर लिया है, और वो एक बात पढ़ के बैठ के उसमें फिजिकली एक जगह पे बैठा हुआ है, और वही बच्चा अभी जस्ट टू गो अहेड एंड डू अ फिजिकल एक्टिविटी, वही बच्चा जाके 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मैच चल रही है और मुझे उसको देखना है, रादर देन दैट जस्ट जाके उस क्रिकेट मैच को खेल ही लेता है, तो वो उसके जीवन में उसको क्या बन जाता है, एक स्पोर्ट्स का रूप धारण कर लेता है। और जो वो स्पोर्ट्स का जाके अपना 100% लगा के वो क्रिकेट को जाके एंजॉय करता है, उसको खेलता है, तो उसके जीवन में वो एक्चुअली ऊर्जा प्रदान करता है, उसको एक फिजिकल स्ट्रेंथ पैदा करता है। प्रोबेबली वहां पे जाके वो जो बाकी 10 लोग होते हैं, उन 10 लोगों के साथ बात करके वहां पे भी ऊंच नीच आती है, आता है वो आता है, एंड एक टीम में कैसे काम किया जा सकता है उसका भी वहां पे वो ज्ञान मिलता है उसको। देन चीजों के बारे में अगर देखते हैं तो उसमें कुछ, कभी वो गेम में हार जाता है, कभी जीत जाता है, जिंदगी में फेलियर्स आ जाते हैं, उनको एक्सेप्ट करना भी हम लोग क्रिकेट से सीख सकते हैं। तो डू यू सी दैट क्रिकेट in itself is not a good or bad? Is there a good or bad about cricket? It is that उसका application आप कब जिंदगी में अपने कर रहे हो, it decides that good or bad. तो इसलिए हम लोग ध्यान में अक्सर बोलते हैं ना, गुरुदेव जो पंचकोशा मेडिटेशन कराते हैं तो बोलते हैं कि do not judge your thoughts, अच्छे या बुरे विचार ऐसा मत देखो, बोलते थॉट्स को जस्ट थॉट्स की तरफ देखो, डोंट जज देम एज अ गुड और बैड। देन बोलते भावनाएं अच्छी बुरी भावना करके मत देखो, हाँ भावनाएं हो सकती है कि सुख की भावना हो सकती है, दुख की भावना हो सकती है, बोलते लेकिन दोनों भी भावनाएं इट्स ओके, जो भी आता है आने दो, एंड देन अल्टीमेटली क्या करो, अगर आपको गहराई में जाना है, अपने आप तक पहुंचना है, तो सबसे पहले लेट इट गो, स्वीकार करो उसको, एक्सेप्ट करो, तब जाके फिर आप अगले स्तर तक पहुंच पाओगे। Oh, this is very good. The science and the spirituality and the Gurudev, they are telling us the same thing again and again and again and again and again and again. कि जो कोई अपने हाथ को छुरी, हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलिए। So there is a conflict, right? In meditation we can do that, like we can, but when you are actually working, we don't, we have to decide, right? In meditation, like Vishram jab karte hai, that time your mind is completely relaxing. That time we can say like this is good, like acceptable. Anjali, can you just switch on your video? I will put it on a spotlight. If possible. That's okay. I just wanted to tell. So Vishram or calm mein fark hai, right? When we are working, that time we cannot say like we wanted to. This is, I have to accept. You have to kind of take some opinion. We have to decide. When you actually work in office, we have to decide ye aa raha hai, ye galat hai, sahi hai. When you are doing meditation, that time you can say, okay, this is also I have to accept. But when you are actually working, you have to definitely make some decisions, and based on work, based on that, right? So that's where the good and bad comes when you actually work. And other than good and bad, I think you have your priorities, what you are going to prioritize and what you don't have to prioritize, that way. Yeah, absolutely. So continue.
Yeah, I definitely agree with अंजलि जी. So basically अंजलि जी क्या बता रही है कि जो हम लोग ध्यान में करते बैठते हैं उस वक्त जो हमें उसको हम लोग स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं because we want to experience the depth of a meditation. So here what we are saying अंजलि, look at the cricket का example. It is not a meditation, no, but what we are saying, cricket is not good or bad. It is the application of that cricket in your life. Means you are sitting and doing study. यदि हम लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं तो क्रिकेट आपके लिए बुरा है. You're thinking about the cricket is bad thing for you right now that moment के लिए ना. और वही क्रिकेट जब उसका आपका पढ़ाई हो गया ऑलरेडी 5-6 घंटे आपने आराम से पढ़ लिया है, ऑलरेडी डन व्हाट यू डिड, एंड देन आप जाके उस क्रिकेट को प्रैक्टिकली स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे खेलते हो एज अ स्पोर्ट्स, तब वो क्रिकेट बुरा नहीं है आपके लिए, देन इट इज नॉट बैड फॉर यू, है ना. तो डेफिनेटली हमको उस सिचुएशन को समझ के गुड और बैड अप्लाई होता है. दैट पर्टिकुलर चीज इन इट्स गुड और बैड. डज दैट मेक सेंस? दिस नॉट इवन अ मेडिटेशन, दिस इज अ प्रैक्टिकल लाइफ. वो पढ़ाई कर रहा है बच्चा और बैठ के सोच रहा है क्रिकेट के बारे में जो यतीन जी ने बताया, तो डेफिनेटली उसके लिए बुरा है उस वक्त वो चीज, राइट, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग द राइट थिंग एट अ राइट टाइम, which you also said in the corporate world when you are sitting in office and that time certain चीजें होती है तो you want to take a decision कि नहीं नहीं ये नहीं करनी है अभी, this is not good, this is not applicable right now, let's not do it. So definitely अपना विवेक तो यूज करना ही पड़ता है उसमें, and I agree with you on that. What do you say? Yes, yes. No, I mean to say अभी हम लोग जो बोल रहे हैं, right, भावनाएं अच्छी बुरी नहीं होती, like, so that's what the point. Yeah. अंजलि जी का प्रश्न ये कुछ अलग एंगल से देखा जाए तो अगर आपकी सबऑर्डिनेट ने दिया हुआ काम नहीं किया और उसके ऊपर अगर आपको कार्रवाई करनी है तो उनका कहना है कि गुस्सा स्वाभाविक है, गुस्सा आता है करके, तो फिर क्या वो नहीं हो? तो अगर अपने जीवन को हम ना हर जगह नियमों में बांध दें तो मेरे ख्याल से काम बहुत आसान हो जाएगा. तो मुझे क्या लगता है इसके बदले जो भी एक्शन लेनी है वो अगर नियमों में बांध दे कि सबऑर्डिनेट ने काम नहीं किया तो गुस्सा किया, फाइल उठा के फेंक दिए, चिल्लाए, ये एक ऑप्शन है. और दूसरा सीधा सीधा कोई अटैचमेंट रहती ही नहीं हमें किसी के साथ, तो नहीं किया तो ठीक है, ये अप्रेजल का 5 में से 2 का रेटिंग मिल जाएगा, इतना बता देना और दे देना, खत्म. कोई हमें उससे प्रेम भी नहीं और द्वेष भी नहीं है, जो है वो रैशनली देखे. हमें इसलिए ना सत्पुरुषों का और बड़े लोगों के जीवन देखना चाहिए. श्री राम जी ने जब अपने छोटे भाई को देहदंड दिया था या उससे पहले उन्होंने जब रावण को मारा था, तो क्या उनके मन में गुस्सा था रावण के बारे में? बिल्कुल नहीं था. उसने ये किया, उसको उसकी सजा मिलनी है, वो सजा दी जाएगी, खत्म. एक जल्लाद जब किसी को फांसी चढ़ाता है तो उसको थोड़ी उससे प्रेम और द्वेष होता है, वो तो बस फांसी देने का काम कर रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है. तो वही हमें भी देखना है कि इमोशंस में नहीं आना है, हमारा कर्तव्य क्या है, जो है वो कर्तव्य निभाना है. पुलिस भी किसी को पनिशमेंट देती है, जज भी किसी को पनिश देते हैं, करते हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं. वो उनको थोड़ी गुस्सा होता है किसी को फांसी चढ़ाने का या फांसी की शिक्षा देने का, कुछ नहीं होता. वही एंगल से देखिए. यतिन का कपल ऑफ क्वेश्चंस here for the chat. विजया लक्ष्मी जी है अपने साथ जुड़ी हुई है, वो पूछ रही है कि हाउ टू कीप अप द प्रॉमिस मेड इन द मॉर्निंग and not to allow it to break just in few hours. एक जर्नी है, एक तुरंत 1 घंटे में हो जाएगा ऐसा नहीं है. आपको इसका अभ्यास बार बार करना पड़ेगा. दिन में जितने बार इन विचारों को आप अपने साथ लेके आते हैं, इस ज्ञान को अपने साथ रखेंगे, उतने ही आपका वो अवेयरनेस बढ़ेगा. देखिए क्रिया तप वगैरह जैसी चीजें होती हैं, इनका अपना इम्पोर्टेंस है. तो क्रिया से आपका अवेयरनेस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं डिसिप्लिन में हूँ, मैं अपने कुछ कर सकता हूँ. लेकिन उसके साथ ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी आपके अंदर पूरा सोख होना शुरू हो जाता है. तो जब भी आपको ये प्रश्न आएगा कि भावनाएं ऊपर उठने लगेगी, तो अगर बार बार अभ्यास किया है ना उसके साथ, आज की जो सीखा है हमने या इसके पहले भी जो हम ज्ञान लेते हैं उसके बारे में सोचते रहे, तो नेचुरली ये चीज़ें अपने आप में होने लगती है. अभ्यास का मतलब ही है कि आप इसके बारे में बातें करें, आप इसके बारे में सोचें और आप इसके ऊपर अमल भी करें. तीनों चीज़ें होती. तो कम से कम सोचने के लिए आपके पास किसी और चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं है. खाना खाने से पहले एक संकल्प ले कि मैं अपने 5 पॉइंट्स रिवाइज कर लूँगा, या फिर आज जो सीखा था उसके बारे में फिर से रिवाइज कर लूँगा. नाश्ता करने से पहले कर सकते हैं, खाना खाते खाते मन में विचार आ सकता है, नहाने के लिए गए उस वक्त विचार आ सकते हैं, कहीं आराम से बैठे उस वक्त भी विचार आ सकते हैं.
जितना आप अभ्यास करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने के बदले आप तुरंत योग वशिष्ठ की किताब ले लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको कोई मूवीज देखने का इंटरेस्ट है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एंटरटेनमेंट टोटली जीरो करिए, लेकिन ये देखिए कि आप इसके ऊपर पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं करके, ये जो ज्ञान है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो कुछ समय में ये होना डेफिनेट है कि आपकी भावनाएं, आपके विचार ये आपके अंदर इस तरह से बन जाते हैं कि हर चीज को आप वो देखते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, हो सकता है। हाँ, वो भावनाएं ऊपर उतनी स्ट्रांग होती ही नहीं। और ये मेरा विश्वास करिए, इसके जैसा जर्नी नहीं है। एक बार ये अनुभव आना शुरू हो गया ना, तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आते, सिद्धियां तो आती ही। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी चीजें नहीं होती, जीवन में अपने आप अलग अनेक सिद्धियां आना शुरू हो जाती, लेकिन एक अंदर की जो जर्नी, जो अनुभव होता है ना, वो बहुत सुंदर होता है। उसको आप चूकिए मत। इस जीवन में जब चांस मिला है, योग वशिष्ठ मिले हैं, गुरुदेव मिले हैं, तो वो अनुभव लेना शुरू करिए डेफिनेटली। निरंजना दादी पूछ रही थी कि जो अपने मेडिटेशन के बारे में बात किया, तो थोड़ा मेडिटेशन के बारे में और बताइए, क्या है कुछ पूछ रही थी। If you want to say something about it. मैं जो मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा था कि आज इस पे विचार करिए, उसके बारे में पूछ रहे हैं या जनरल मेडिटेशन के बारे में? उन्होंने ऐसे प्रश्न लिखा है यहाँ पे कि मेडिटेशन क्या होता है। अच्छा। मेडिटेशन की कई सारे अलग अलग डेफिनेशन होती है। एक यह है कि आप उसको योग में कन्वर्ट करिए, जो भी कर रहे हैं उसमें 100% रहिए, तो भी वो मेडिटेशन है। अगर किसी बंदे को बोला कि दीवार पे कीला लेके हथौड़ा मारना शुरू करे, तो उसका वहां पे मेडिटेशन होना जरूरी है, नहीं तो वो हथौड़ा उंगली पे लग जाएगा, ना कि कीले पे लगेगा। ठीक है ना? तो वो एक है। दूसरा मेडिटेशन का जो हम टिपिकली फॉलो करते हैं, वो यह है कि सारा सब कुछ छोड़ दे, बस अपने आप में रहे। हाँ, तो ये दूसरा अर्थ होता है। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से सब छोड़ दे, कि अपने कार्य ना करें, ऐसा नहीं। कार्य करते रहें पर किसी से अटैच ना रहे, बस अपना सारा फोकस अपने आप में रहे। मैं कौन हूँ? आज ये सबसे बड़ा प्रश्न तो इस सेशन में आया भी था वो वीडियो में ना, कि ये भावनाओं के पीछे, इंप्रेशंस के पीछे लगने के बदले कि पूछो, राइट, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, क्या करना चाहिए। तो अपने आप के बारे में पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब जो देख रहा हूँ वो क्या है। तो जब ये देखना शुरू करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कैसे ना कैसे योग वशिष्ठ से या हमारे अध्यात्म से ये चीजें उठाई गई। फोकसिंग ऑन आउटर इम्प्रेशन, उसके बदले अपने आप में देखना शुरू करें, अपने अस्तित्व के बारे में जाना, वो भी मेडिटेशन ही होता है। और इसके बारे में डिटेल में यदि जाना है तो पतंजलि योग सूत्र में भी गुरुदेव पूरा समाधि के ऊपर देयर इज वन फुल कमेंट्री है। अलग अलग प्रकार की समाधि कैसे होते हैं, या मेडिटेशन के बारे में कैसे मन में हम लोग मिसकंसेप्शंस पाल के रखे हैं, व्हाट मेडिटेशन इज नॉट। तो उसके बारे में गुरुदेव डिटेल्ड में बताया। तो जरूर आपको चांस मिले तो जरूर आप उस ध्यान के बारे में जरूर पढ़ना और सुनना गुरुदेव से। पतंजलि योग सूत्र में आता है समाधि के बारे में, इज वन फुल सीडी ऑन दिस। जरूर इसके बारे में भी और डिटेल में जानना है तो कैन लिसन टू दैट। विद दैट नोट, यदि कुछ मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, यदि नहीं तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इट्स ऑलरेडी 8:58। तो अगेन इस सत्र को आज का 12वां दिन है, कल 13वें दिन हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। इनिशियल विल फिनिश दैट वीडियो व्हाट डब्ल्यू डू, कल उसका एक 17-18 मिनट का लास्ट पोर्शन बच गया। विल फिनिश विद दैट एंड देन कंटिन्यू योग वशिष्ठा। परसों से हम लोग फिर ऋषि जी के जो नॉलेज टॉक्स है, विल लिसन टू दैट एंड फिर यतीन जी से उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। योग वशिष्ठा की अलग अलग कहानियों के द्वारा योग वशिष्ठा के अंदर हम लोग और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। With that note, we'll conclude today's session. आप सभी का दिन शुभ हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।